Hello everyone, welcome back to my channel, Sridevi's Commerce and Management Academy. Today I'm going to take a very interesting topic, and that is all about cash flow. In fact, in business, we have to know how much is the cash that comes in, that is a cash inflow, as well as we have to know how much cash goes out. Okay, so in a very simple way I'm going to explain to you all about cash flow statement. This topic will be very useful for not only for our 12th standard students, CBSE and the other boards, but also for the beginners. In a very simple way, I'll try to explain to you the basic concept of cash flow statement. So, to begin with, what do you mean by cash flow? The name itself gives us an idea कि cash जो है वो flow हो रहा है. वो flow जब हम कहते हैं तो अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं. So let us understand the meaning of cash flow statement. Cash flow statement, it is the statement that shows flow of cash and cash equivalents. It is a statement, वो एक statement है जिसमें cash flow के बारे में बताते हैं. Cash flow जब हम कहते हैं तो flow of cash सिर्फ cash नहीं, इसके अलावा there is cash equivalent. I'll explain to you what do you mean by that. During the period under the report. तो cash flow statement is a statement where we show the flow of cash and cash equivalents. फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए, आगे हम बताते जाएंगे कि इसकी actual and deeper meaning क्या है. Now when we say cash flows, यहाँ पर हमने बोला ना कि flow of cash, what does it means? Cash flow का meaning क्या है? बताते हैं कि these are the inflows. These are the inflows. Inflows मतलब कि receipts. Cash जो है अंदर आते हैं. जैसे कि आपने you sold something, okay? Sold machinery. तो आपको क्या होता है कि पैसा मिलता है. Interest received on some investment. आपने कुछ इन्वेस्ट किया आपके धंधे में और आपको पैसा मिलता है. So all those receipts are called as inflows. So ये जो कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो मीन्स रिसीट्स एंड आउटफ्लो मीन्स पेमेंट्स. जब आप पे करते हैं तो कैश गोज आउट, सो दैट फ्लो इज कॉल्ड एज आउटफ्लोज. सो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज अ फ्लो ऑफ कैश. कैश फ्लो बताते हैं. तो कैश फ्लो का मीनिंग क्या है? इट कैन बी इनफ्लो विच मीन्स रिसीट्स and it can be outflow which means payments of किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? inflow and outflow of what? cash. जब हम cash बोलते हैं, please understand very important, and that is not only cash but also cash equivalents. Now let us understand what you mean by cash and what you mean by cash equivalents. तो कैश क्या है? इट कंप्राइजेस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. इसका मीनिंग क्या है कि आपके हाथ में कितना पैसा है इस धंधे में. तो कैश ऑन हैंड, अभी हमारे पास इतना पैसा है, दैट इज कैश ऑन हैंड एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय कैश. इसके अलावा बैंक में कितने पैसे, आपके पैसे आपने बैंक में रखे, आपके जेब में रखे, आपके धंधे में रखे, इट ऑल मीन्स द सेम. सो कैश मीन्स व्हाट? कैश ऑन हैंड, ओके, एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक. जब भी आप डिमांड करते हैं बैंक से, आप बैंक को आपको देना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इज कैश. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स? हम बोलते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो फ्लो होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट इज व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश इक्विवेलेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है. दीज आर शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म है. highly liquid investments. It can be liquefied. कभी भी आपको पैसा उसको एनकैश कर सकते हैं and are readily convertible into known amount of cash
and which are subject to an insignificant risk of change in value. An investment normally qualifies as cash equivalent only when it has short maturity period of say 3 months or less. आपने कहीं इन्वेस्ट किया है एंड उसकी जो ड्यूरेशन जो है इट शुड बी शॉर्ट टर्म, एंड व्हेन वी से शॉर्ट टर्म वी मीन दैट कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपने उसको डिपॉजिट करके रखा है, तो उसको भी हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट. सो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इट इज हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड. कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स व्हाट? कैश का फ्लो. कैश फ्लो मीन्स कैश फ्लो ओके. कैश फ्लो मीन्स क्या है? कैश का फ्लो है. Now when we say cash flow, it can be inflow and outflow. When we say cash, cash का मीन कि cash and cash equivalents. अभी फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है. Now let us move on to the next one. Now remember, cash flow statement जब हम बनाते हैं तो इसमें ये सारी चीजें को अकाउंट में डालते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पता करना आपको. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ. मैंने इसे कैश मींस इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके, एज वेल एज कैश इनसाइड रिसीट्स कितना हुआ, कितना आपको मिला है, कितना आपने पेमेंट किया है, तो उसको वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है. वैसे ही इन्वेस्टिंग के थ्रू भी आपने इन्वेस्ट किया, मान लो कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, तो आपने अगर इन्वेस्ट किया है कहीं भी, देन उसमें भी कैश कितना आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए भी आपने कुछ बोरो किया है, आपको पैसे की जरूरत लगी, आपने लोन लिया है, तो उसमें कितना आपको अंदर आ गया, कितना आपको बाहर गया, कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो इन सारी चीजों को फाइनेंसिंग में आता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है. से पहले जान लो कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. प्रिंसिपल रेवेन्यू, द मेन रेवेन्यू. आप किसका आपका धंधा है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग and what is the main business, and through that what are you getting, in that what are the cash flows, inflows and outflows that is happening, is what we mean by operating. For example, I have a mobile shop. मुझे मोबाइल शॉप का बिजनेस है, तो मेरा क्या है धंधा, मोबाइल को बेचना, तो उसके द्वारा पैसे आना जाना जो भी होता है वो ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज जो आपका होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो जानना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिंग? दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल. एक्विजिशन मींस आप परचेज कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, या डिस्पोज कर सकते हैं, या तो सेल कर सकते हैं. तो दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ व्हाट, क्या किसका खरीदी करना और बेचना होता है. इट इज लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट. जब हम कैश इक्विवेलेंट बोले थे तो मैंने कहा कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड है, लेस देन 3 मंथ्स. लेकिन जो उसके ऊपर होता है तो वो इन्वेस्टमेंट्स या तो आपने कुछ भी एसेट्स, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स मान लो कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, आपने फर्नीचर खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, तो ऐसे कुछ अगर लेन देन होते हैं तो उसको हम इन्वेस्टिंग में डालते हैं, बिकॉज वो इन्वेस्ट के लिए किया, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किया है. whatever activities that you invest for investment, उसको हम बोलते हैं investing activities. Now what do you mean by financing activities? These are the activities that result in the change in the size and composition of the owner's capital, including preference share capital and borrowings. मतलब क्या कि आपका जो फाइनेंसिंग में कैपिटल्स,
शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर आपने इश्यू किया या तो आपने खरीदी किया, जो भी होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स, जो आपने डिबेंचर्स लिया है या तो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो ऐसा कुछ अगर होती है तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एंड उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है. नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज. Now, extraordinary activities now let me talk about extraordinary activities. Okay, these are the incomes and expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise and are not expected to recur frequently or regularly. जो extraordinary जब बोलते हैं, that name itself gives us a deeper understanding of those activities which are not regular activities. Extraordinary कभी कभार होता है. For example, loss by fire हो, theft हो, natural calamities हो, disaster ho, anything of that sort. When it happens, then your cash goes out or cash comes in. Sometimes insurance company will give you, so that insurance claim will be there. ऐसे अगर कुछ भी flow होते हैं, cash का आना जाना होता है, those activities comes under extraordinary activities. So far what has happened is that you have understood what do you mean by cash flow statement. What do you mean by cash flow statement? You have understood cash flow क्या है? Cash flow statement ऐसा statement है जिसमें हम cash flow और cash and cash equivalents का flow दिखाते हैं. When I say flow का मतलब है कि cash का meaning क्या है? Cash and cash equivalents. Flow का meaning क्या है? It can be inflow and it can be outflow. तो inflow का meaning है receipts and the outflows are payments. अच्छा, कैश का मीनिंग क्या है? कैश का मीनिंग है कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट टू द बैंक. कैश मतलब जो आपके हाथ में है प्लस आपके बैंक में है. कैश इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड का जो आपको छोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो लेस देन 3 मंथ्स का अंदर होता है उसको हम कैश इक्विवेलेंस बोलते हैं. एंड नेक्स्ट, You understood what you mean by operating, जहाँ पर कि मेन रेवेन्यू किसमें से आता है? नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज जो होते हैं आपके धंधे का, उसमें से जो पैसा अंदर आता है बाहर जाता है, दैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदी किया, आपने प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया है. Anything of that sort will come under investing. Financing क्या है? Owners capital and borrowings. Okay? And extraordinary जो normal में नहीं होता है. So this you understood. So please understand again. Now accounting standard 3 which is revised, it requires that कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए. कितना कैश, नेट कैश आपको ऑपरेटिंग से मिलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये तीनों एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है. सो अभी तक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है. ये तीनों चीजों के सारे ये चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है. एंड दिस इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर द वी आर फॉलोइंग एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 which is revised one. So now coming back to again I am emphasizing कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखाना है, उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कवर्स द एंटरप्राइजेस की रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. जैसे कि हमने बताया था, वी टोल्ड दैट ओके, तो हमने बोला था कि प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब कि मेन रेवेन्यू, तो उसी को हम बोलते हैं कि की जनरेटिंग एक्टिविटीज जो है एज वेल एज नॉन इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. इसके अलावा हम आपको इसके बारे में बताएंगे थोड़ी देर के बाद कि जो इन्वेस्टमेंट का नहीं, नॉन इन्वेस्टमेंट एंड नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उसको भी लेना है. डे टू डे
प्रिंसिपल रेवेन्यू, मेन रेवेन्यू जो होते हैं उसको लेना है। इसके अलावा जो फाइनेंसिंग में नहीं जाता उसको भी डाल दो, जो इन्वेस्टिंग में नहीं जाता उसको भी यहाँ पे डाल दो, ये बता रहे हैं यहाँ पर ना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या क्या आता है इसमें, सैलरी पेड होते हैं, इनकम टैक्स आपने पे किया, ये सब आपका जो है इनकम टैक्स रिफंड है, स्टॉक आपने परचेज किया, स्टॉक सेल किया, ये कोई भी चीज डे टू डे नेचर का अगर जब होता है तो उसको हम डालते हैं ऑपरेटिंग में। उसी तरह गुडविल रिटर्न ऑफ जब होते हैं तो उसको भी हम डालते हैं ऑपरेटिंग में। इसको हम डीपर इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, एज स्पेसिफाइड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है एंड बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वो इसमें आता है। वेरी सिंपल, फॉर एग्जांपल देखो, सेल्स एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड करंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि लेस देन 3 मंथ्स का है। सो नॉन करंट इज अ लॉन्ग टर्म, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो अगर आपने परचेज किया, खरीदी किया, सेल किया कोई भी फिक्स एसेट्स या तो नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स को, तो उसको वो सारे एक्टिविटीज की जो फ्लो होते हैं, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, उसको यू हैव टू स्पेसिफाई इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, सोल्ड फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पर आएगा, आपने सेल किया फिक्स एसेट्स, वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। परचेज फिक्स एसेट्स कहाँ पर आएगा, फिक्स एसेट आपने परचेज किया है तो वो आएगा इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन्वेस्टेड, आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया था और उससे आपको रेंट मिल गया है, देन इट विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट रिसीव मिला, वो भी यहाँ पर आएगा। उसका डिविडेंड मिला आपको, वो भी यहाँ पर आएगा। आपने इनकम टैक्स पे किया रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर हो गया तो वो आ जाएगा। आपने पहले देखा कि यहाँ पर देखो इनकम टैक्स पे दिया है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट से अगर आपने कुछ अगर इनकम टैक्स पे किया देन दैट विल कम इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वैसे ही गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ऑल इंटैंजिबल एसेट्स अगर आप परचेज किया है तो वो भी इसमें आ जाएगा इन्वेस्टिंग में। सब कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। नाउ व्हेन सोल्ड कैश इनफ्लो व्हिच मींस प्लस। अच्छा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि याद रखिए जब कैश इनफ्लो आता है, कैश अंदर आता है तो प्लस करना है हमको। तो हम जब when we I'll explain to you the format of that we will be able to understand better, but just understand जब receipts होते हैं, जब there is a cash inflow we have to add, and when there is a cash outflow we have to minus it. That we have to remember for all the activities. ऑपरेटिंग में भी कैश अगर अंदर आता है तो इनफ्लो अगर है तो ऐड करना है आपको, अगर आउटफ्लो है देन यू हैव टू सबट्रैक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। द नेम इटसेल्फ टेल्स यू व्हेन देयर इज अ कैपिटल एंड बोरोइंग्स में, जैसे कि आपने इतना याद रखिए, फाइनेंसिंग मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बस इतना याद रखो, शेयर, डिबेंचर्स, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आप खरीदी करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इश्यू करते हैं, रिडीम करते हैं, then it will come in the financing activities and it's all a part of financing activities. So see example, issue of shares. आपने इश्यू कर दिया शेयर को, so you get money, cash comes in, and that is why I've shown here as plus. अगर मान लो कि आपने डिबेंचर को इश्यू किया तो भी आपको पैसा मिलता है। So whenever there is an inflow you have to add. Now have you understood कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर्स है, ओनर्स कैपिटल है, प्लीज अंडरस्टैंड, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 4 आइटम आते हैं। दैट्स ऑल, वेरी वेरी इजी इट इज। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अरे भाई हम क्यों बनाते हैं ये कैश फ्लो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है टू डिटरमाइन द सोर्सेस, एक्चुअली पता करने के लिए वी वांट टू नो द सोर्स क्या है, कहाँ से आता है पैसा। तो सोर्स पता करने के लिए
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पता चलता है. एंड इन व्हाट एक्टिविटीज? in the operating, in the investing and in the financing activities में कितना actually source कहाँ से ये पैसा आ गया, कहाँ से पैसा गया, ये पता चलता है. Now next is to determine the applications, मतलब कि payments के बारे में. To determine the net change, net effect क्या है cash and cash equivalents का, वो पता चलता है. In other words, to assess the cash flow from different activities and to know what is our net cash position. Ultimately हमारा position क्या है, net cash कितना है अपने को, वो अगर पता करना है, then that is the very reason why we prepare this cash flow statement. There are certain limitations, okay? Before we get to the problem, what I want is, I want you to understand the basic concept of cash flow statement. So here इतना याद रखिए कि there are certain limitations also cash flow statement में. क्या है भाई कि यहाँ पर हम लोग नॉन कैश आइटम्स को नहीं लेते हैं. We don't take the non cash transaction. जैसे कि नाम बताते हैं कि we are talking all about the cash. तो नॉन कैश आइटम्स को नहीं लेते हैं. इसके लिए what is it? There is a drawback. तो ये इसकी limitations है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज किया, लेकिन आपने बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स आपने बिल्डिंग परचेज किया और उसके व्हाट डिड यू गिव? डिड यू पे कैश? नो, वी गिव शेयर्स. सो ये कहाँ पर आएगा? वाज देयर एनी कैश फ्लो? कैश का फ्लो ही नहीं हुआ है. एंड इस वजह से देयर इज नो एंट्री, नो रिकॉर्ड. अंडरस्टूड? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आते हैं. Likewise, it's not a substitute for statement of P&L. Statement of P&L account, you know how to prepare. तो उसमें it is ये इसका substitution नहीं है. Okay? Since CFS, that is cash flow statement, does not show the profit earned or loss incurred. इसमें खाली बता दें कि आपका ये कैश इतना नेट कैश है, but they will not tell you whether you got a profit or have you got a loss. जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में होता है, यहाँ पर नहीं पता चलता है. सो दैट इज अ सेकेंड ड्रॉबैक. एंड ऑल्सो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट. का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बता सकते हैं. वो बता नहीं सकते आप कौन से पोजीशन में, सिर्फ इतना पैसा है आपके पास, बस इतना ही बता सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द बैलेंस शीट. यू नो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट? From the P&L account and from the balance sheet. तो उधर अगर गलती हुआ है तो यहाँ पर भी गलती होगा. They will not question. So therefore we say it is historical in nature, and that is one of the other important drawbacks. Next is liquidity of the enterprise cannot be determined by the cash flow statement. आपका liquidity जो है वो they cannot find out, as it depends on other factors also, like current assets and current liabilities. Cash and cash equivalents is one of the components of cash current assets. तो ये इसमें क्या है कि liquidity जो है उसके बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा. Also, cash flow statement, as you know, it's prepared from the financial statements. Its accuracy is a big challenge. हमने कहा था पहले भी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट ऑफ P&L से. तो क्या है कि उसमें एक्यूरेसी इज अ बिग चैलेंज. बोलते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्टली प्रिपेयर्ड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट विल आल्सो बी रॉन्ग. सो देयरफॉर वी कैन नॉट फुल्ली रिलाई ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट. हाउएवर, in spite of these limitations, it is mandatory to prepare cash flow statement which covers all the activities. Now there is also, again, these are some of the important transactions जो कि याद रखना है कि इसमें कैश फ्लो का इफेक्ट नहीं होगा. एक चीज याद रखिए कि कैश फ्लो का इफेक्ट तब होता है जब कैश का फ्लो होता है. वो इनफ्लो भी हो सकते हैं या आउटफ्लो हो सकते हैं, और वो इनफ्लो कौन से एक्टिविटीज के थ्रू है वो आपको पता करना. ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है. सो यहाँ पर जो है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. सपोजिंग इफ दे गिव यू अ ट्रांजैक्शन सेइंग दैट कैश हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लो है क्या? कैश फ्लो है क्या?
नो फ्लो, वाई? बिकॉज कैश जो है आपके हाथ में है या बैंक में है, दोनों भी कैश ही है, आपका अकाउंट में, दूसरों के अकाउंट में नहीं है, एंड देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, इसमें कुछ होगा कैश फ्लो में? कुछ नहीं होगा। वाई? बिकॉज आप पैसा निकालो, बैंक से निकालो पैसा, क्योंकि बैंक में पैसा है, आपकी जेब में पैसा है, आपके हाथ में पैसा है, इट ऑल मीन्स द सेम, सो देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर आपने परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिया है, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट विच इज लेस देन 3 मंथ्स, तो वो भी फ्लो नहीं है। देयर इज बोथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नो चेंज। सेल ऑफ मार्केटेबल, नो चेंज। परचेज और सेल ऑफ मार्केटेबल, नो चेंज। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने कुछ ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में लिया, तो देयर इज नो कैश फ्लो, कैश तो नहीं है इसमें इन्वॉल्व, सो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। व्हाट अबाउट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, आपने बोनस दिया है, ओके, शेयर होल्डर्स लोगों को जब प्रॉफिट बहुत हुआ तो उसको कैपिटलाइज करते हैं आप लोग, उसको पैसे को आप लोग बांटते हैं, उनको देते हैं, एंड आप जब वो शेयर्स देते हैं, यू आर नॉट टेकिंग द मनी। बोनस शेयर मीन्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आप फ्री में देते हैं तो देयर इज नो फ्लो, एंड हेंस बोनस शेयर्स में भी बिल्कुल नो कैश फ्लो। लाइकवाइज कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू कैश, आपने डिबेंचर्स को कैश में कन्वर्ट किया, भाई इसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, शेयर्स में कन्वर्ट किया, सॉरी, तो इसमें कैश इन्वॉल्व, whenever there is no involvement of the cash, then that means there is no flow। वैसे ही बैड डेट्स, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाट्स अ जर्नल एंट्री, यू नो दैट कि इसमें भी आपने राइट ऑफ कर रहा है बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स व्हाट, बताइए? जो डेट्स जो आपने किसी को उधार दिया है और वो पैसा नहीं देते, उसके लिए हमने क्या किया, वो बैड डेट्स बोलते हैं, जो द डेट्स दैट हैज गॉन बैड, ओके, उसको हम राइट ऑफ करते अगेंस्ट प्रोविजन। पहले हमने प्रोवाइड करके रखा था, हमको डाउट था कि चैटर्जी को हमने 50,000 दिया है, लेकिन उसमें से वो 30,000 देगा, बाकी का 20,000 नहीं देगा, तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखा था, और अब हम उसको राइट ऑफ करते हैं। सो ऑलरेडी एक बार आपने उसका इफेक्ट किया, सेकेंड टाइम जब करते हैं तो देयर इज नो कैश फ्लो, राइट ऑफ जब करते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट द यूजेस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसके यूजेस क्या है? यूजफुल फॉर इवैल्यूएटिंग द कैश पोजीशन ऑफ ए फर्म, आपका एंटरप्राइज का, आपका कंपनी का कैश का पोजीशन क्या है वो पता कर सकते हैं आप थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट हेल्पफुल इन फाइंडिंग डेफिशिएंसीज एंड वेरिएशंस इन फर्म्स परफॉर्मेंस व्हिच हेल्प्स इन द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आपको हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने के लिए। सो फॉर डिसीजन मेकिंग आल्सो इट आल्सो हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। आपके कंपनी का लिक्विडिटी क्या है, कितना आपके पास लिक्विड कैश है, वो भी आपको पता चलता है। इट ऑल्सो एनालाइजेस कैश रिसीट्स कितना है, कैश पेमेंट्स कितना क्या है। आपके शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए बहुत हेल्प करने की, आपको पता चले कि यू नो हाउ मच कैश एक्चुअली यू हैव। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेग्रीगेटिंग कैश फ्लोज obtained from the various activities of the business. It also helps you to understand, segregate करके मिलते हैं कि आपने ऑपरेटिंग को अलग रखा है, ऑपरेटिंग से कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, यू अंडरस्टैंड। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वो यू आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थ्रू दैट हाउ मच कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट। लाइकवाइज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी कितना कैश आता है, कितना कैश जाता है, ये भी आपको पता चलता है। सो इट्स वेरी वेरी यूजफुल। एंड ऑल्सो कि आपके जो डिसीजंस जो होते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें भी आपको हेल्प करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो फॉर ऑल योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें भी आपको हेल्प करता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली इफ यू लुक एट यू नो इसकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चों को काफ़ी टफ लगते हैं एंड द बिगिनर्स हु आर वेरी न्यू टू दिस अकाउंट्स। So I feel that you just pay attention to this and you will understand the basic concept. So I hope you understood now what do you exactly mean by cash flow statement. मैंने आपको I explained to you what are the uses of cash flow statement. I also explained to you so there are certain transactions
which have no effect on the cash flow. Also objectives किस लिए हम ये करते हैं, I explained to you. Also I explained to you what do you mean by these activities, okay? And okay, and also I explained to you what are these activities, and also I explained to you all about the cash flow statement. So I hope that you have understood the basic concept of cash flow statement, and stay tuned with me, and please see that if in case you felt that this video has helped you to understand the concepts, please like and share to your friends for whom it will be really helpful. And this is actually helping even the children who are doing their MBA and the non-commerce students. For them also it will be very helpful. And next class next session I will be explaining to you how exactly to prepare. अभी आपको हमने सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, किस वजह से हम इसको बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ऑल दिस थिंग्स आई एक्सप्लेन. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन टू यू द फॉर्मेट, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड देन वील ट्राई टू सी हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर? That's all for the day. Thank you so much, and stay happy, stay blessed, and please try to like, you can comment, and please put your, in case if you have any doubts or if you want me to understand certain things, I want your feedback also. And also please let me know if I'm very fast or very slow, or आपको लगता है कि ऐसा ही आपको explanation चाहिए, please let me know. Thank you so much, and see you in the next video. Thank you.